Hello students, let us start today exercise 6.4. This is exercise 6.4. Okay, the question number 1 is find the square root of each of the following numbers by division method. This is the another method to find out the square root. In the previous chapter we have done how to find out the square root by the prime factorization method. Here this method is very important because in the higher classes this method is very required, everywhere required. So just try to understand the method carefully so that you can solve this easily. So the first question let us take is square root of 2304. This is 2304. Just see how we will solve this in the division method. Just write 2304. Make the pair from the right side. These two and these two. Now just find out a number by which the same number is multiplied to get us 23. If you will take 4 4 is 16. You have to multiply 4 with 4. If you are taking 3 will be multiplied by 3. If you are taking 5 will be multiplied by 5. So 5 is 25 is the greater than 23. So we will take 4. So just write here 4. And here also 4 4 is 16. Subtract this, 13 minus 6 is 7. And whatso number we have written here, same number will be added every time. So this is 8. And now 04 we are getting. We will get two number at a time because we have made the pair. So two numbers will be here. Now just put a number here and multiply it by the same number to get 704. Just do some rough work. This is 8 and this is 4. So just write a number. Suppose we are writing here 7. So 7 multiplied by 7. 7 7 is 49. 8 7 is 54 and 4 58. This is less than that. So just take 8. This is 8, now it is 88. 8 8 is 64, 6 8 8 is 64 and 6 70. So we are getting here the same number which is written here. So just write here 8 and also 8. Now this is 704. Remainder is 0. So the division work will be stop here and we can write that ki square root of 2304 equal to 48. So this is called division method. Let us take another question. Now we are going to take the question number 8, 7921. This is 7921. Make the pair from the right side and now this. So find out a number which when multiplied by the same number we will get 79. No number is there. If we try to take 8, 8 8 is 64 is less than 79. So just take one more number and that is 9. 9 9 is 81. 81 is more than 79. So we will take 8 here. This is 8 and it is by 8. So 8 8 is 64. 9 minus 4 is 5 and 7 minus 6 is 1. 8 8 8 plus 8 16. Two number will be there, 15 and 21. And now think a number which when multiplied by same number will give this. So we will try by 9 because 9 into 9 is 81 and 1 is here. So just think what is going to be happen. 169 multiplied by 9. 9 9 is 81, 9 6 is 54 and 8 62 and 9 6 15. So we are getting this. So just write here 9 and this is also 9. 1 5 2 1 and cancel out. Okay. So therefore root over 7921 will gives us 89 as answer. So these are the method to solve the questions of square root by division method. Just practice this method more and more time so that you will get yourself familiar to solve such type of questions. Now just see the question number 2. It is written that you find the number of digit in the square root of the following numbers without any calculation. तो आपको ये बताना है कि इसमें इसको जब हम सॉल्व करेंगे
तो स्क्वायर रूट करेंगे तो इसमें कितने डिजिट आएंगे। सिंपल है, अगर इवन नंबर में डिजिट्स का नंबर इवन है, जैसे सेकेंड है तो 2 डिजिट है 64 में, तो 64 इवन है, इवन को सीधे 2 से डिवाइड कर दें, जो आएगा उतने ही डिजिट आएंगे उसमें आंसर में। 64 में 2 डिजिट है तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, आप 1 आएगा तो इसमें 1 डिजिट होगा। 144 ये ऑड है, 1 2 3 144 144 3 डिजिट है, तो 3 मतलब ऑड है, तो ऑड वाले में n प्लस 1/2 ये फॉर्मूला लगता है, दैट इज 3 प्लस 1/2 4/2, मतलब आंसर में आएगा 2 डिजिट। ऐसे आप कर सकते हो, ऑड को सीधे 2 से डिवाइड कर दो और इवन को सीधे 2 से डिवाइड करो, ऑड में +1 करके 2 से डिवाइड करो। Now the next question is there, question number 3, find out the square root of the following in decimal number. So decimal numbers are here, so let us do the square root of decimals. Just take first one, this is third first, 2.56. Same method is here also, make the pair from the right side, if one number is left out तो this will be alone like this। तो हमारे पास पहला नंबर 2 है, तो 2 को अगर 2 ले लेते हैं तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, तो 1 लेना पड़ेगा, तो 1 हियर 1 हियर 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1, ये 1 प्लस भी होगा, यहाँ पे 2 हो गया, पॉइंट है पॉइंट डालिए 5 6, किस नंबर से जाएगा, 2 के बाद कोई नंबर डालो और उससे उसी को मल्टीप्लाई करो, देखो ये 6 आए अगर लास्ट डिजिट तो आप उससे यूज कर सकते हो। तो देखो अगर हम 4 डालते हैं तो 24 4 या 96, 4 में नहीं आएगा, 6 तो आ रहा है लेकिन नहीं आएगा, फिर और कौन से नंबर पे 6 आएगा, 5 पे 6 में आ सकता है, तो देखो 26 इंटू 6 क्या होता है, आ रहा है, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6, 156 कैंसिल आउट, तो इस तरह से होगा 2.56 इक्वल टू 1.6। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 42.25 ले ले, थर्ड का फोर्थ, 32.25, दो का पेयर बन रहा है, राइट साइड से 2 का पेयर बनाते हैं, अगर आखिरी में जैसे इसमें एक नंबर बचा था तो वो सिंगल रहता है, 32 है तो 6 लेंगे तो 6 6 36 ज़्यादा हो जाता है तो 5 लेंगे, 5 5 25, तो 32 माइनस 5 इज 7, 5 प्लस होगा 10 हो गया 0.25। अब आप 10 तो है, अब आप 10 है इस पे कोई एक नंबर डालो, फिर उसी से मल्टीप्लाई, एक तो 5 हो सकता है और एक नंबर देखना पड़ेगा कि किससे करने से हमारा ये नंबर ऐसा आ जाएगा। तो सोचिए, अगर हमने 725 है, अगर हमने यहाँ पे डाला 5 तो क्या आएगा, 5 5 जा 25, 2 और ये 5 525 आ रहा है, तो 725 हमको चाहिए। लेट अस फाइंड आउट कुछ और नंबर, 42 था, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन, दिस इज 42, सॉरी, लेट अस डू दिस क्वेश्चन अगेन, दिस इज 42, so 42.25, 42, so it will be take 6 6 are 36, and now 12 minus 6 is added here, so 12, now put the point here, take 5, it will be 125 into 5, 625, so 42.25 will give 6.5. Okay, now go for the next questions. Question number 4, find the least number which must be subtracted from the following numbers to get a perfect square। तो कम से कम कौन सी छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इसमें से माइनस कर दे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन, इसके बाद उसका भी परफेक्ट स्क्वायर बताना है जो ये नंबर हमको मिला है माइनस करने के बाद। तो सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके भी।
चलिए लेते हैं इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लें, 4 का फर्स्ट। 402 पेयर बना, 4 है 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 कैंसिल, प्लस 2 4 0 2 ये आया। तो अगर अभी आखिर ये 2 डिजिट आने के बाद भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे एक 0 डालेंगे और यहाँ भी एक 0 डालेंगे। तो इसमें रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर है यहाँ पे 2। तो अगर ये 2 नहीं होता तो ये पूरे नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो लिखेंगे हम कि हेयर 2 इज रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है उसी को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। देयरफॉर 2 शुड बी सब्ट्रैक्टेड to get a perfect square। ओके तो 2 माइनस कर देंगे इसमें से तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। अब परफेक्ट तो न्यू नंबर क्या बनेगा? तो न्यू नंबर इक्वल टू 402 माइनस 2 दैट इज 400 और 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 20 आ ही रहा था। तो 400 इक्वल टू 20। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। और क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। इसमें सब्ट्रैक्टेड था, जो रिमाइंडर है उसको ही सब्ट्रैक्ट करना है। ये क्वेश्चन एडेड है, व्हाट शुड बी एडेड, इसमें क्या ऐड करें, थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो 5 है ये क्वेश्चन नंबर 525 फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। 525 सेम मेथड है, सब कुछ वैसे करेंगे। 5 है तो 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 1 प्लस हो जाएगा 2 दिस इज 4 2 5। अब कितने बार जाता है ये तो देखते हैं इसको। अगर हम 3 बार 2 बार लेते हैं तो 84 आएगा। 3 बार अगर लेते हैं तो 3 3 जा 9 4 3 जा 12 129 आता है। इसके 2 मेथड है। एक सिंपल मेथड ये है कि आप एक नंबर आगे लेके जाओ। 2 बार जा रहा है, रिमाइंडर बचेगा। 3 बार आप लो तो 3 बार लोगे अगर तो यहाँ 3 डाला, यहाँ 3 डाला और आ जाता है 129। ठीक है, माइनस करोगे तो ये आएगा -4 -4 आता है रिमाइंडर। ये भी एक मेथड है, ये सही मेथड है, इस तरह से कर सकते हैं आप। अब ये जो -4 आया है तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट शुड बी एडेड, इस नंबर में क्या प्लस कर देते तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। देखो अगर ये 9 होता, 2 9 होता तो यहाँ पे भी 9 आता, फिर ये पूरा क्रॉस हो जाता। तो हमको लिखना पड़ेगा ये जो माइनस करने के बाद जो नंबर आया है इसको ऐड करना होगा। तो हम लिखेंगे, ये शॉर्ट तरीका है, तो हम लिखेंगे कि 4 शुड बी एडेड, 4 शुड बी एडेड टू 529 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा है। अब इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो फिर से ले लो। तो न्यू नंबर क्या हो गया? न्यू नंबर हो जाएगा 525 प्लस 4 दैट इज 529। अब अगर इसका करोगे तो फिर वही आ जाएगा। 2 से गया तो 2 2 जा 4 प्लस हो गया 2, ये 4 आया, ये 1 2 9। अब 3 बार जाएगा तो 3 बार में 129। तो 529 रूट में आया और इसके इक्वल में 23 आंसर। इस तरह से आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर व्हिच एरिया इज 441। तो लेंथ फाइंड करना है स्क्वायर का। अगर आप उसके लेंथ को x मान लो और फिर या फिर सीधे 441 का स्क्वायर रूट निकाल दो जो कि 21 आएगा तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
इन राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90। ए राइट ट्रायंगल अगर ABC लिया हमने, इसमें B पे 90 डिग्री है और इसमें क्वेश्चन नंबर ये है 7। AB 6 है, BC 8 है। AB 6 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है। तो AC फाइंड करना। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा और पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड कर सकते हो कि इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB की जगह 6 और इसमें 8। AC स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 64 एंड AC स्क्वायर इक्वल टू 100। देयरफॉर AC इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि 10 होता है। तो इस तरह से आप इसके बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। ही वाज टू प्लांट दिस इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। वो इस तरह से थाउजेंड्स को प्लांट्स को प्लांट करना चाहता है कि रोज और कॉलम सेम हो। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड्स मोर फॉर दिस। तो कितना एक्स्ट्रा प्लांट उसको लगेगा इस काम के लिए। तो देखिए करते हैं। ये व्हाट शुड बी एडेड टाइप का क्वेश्चन है, उस मेथड से हम लोग कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट्स द गार्डनर हैज इक्वल टू 1000 प्लांट्स है उसके पास। अब उसको नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स चाहिए इक्वल। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देयरफॉर अब आप 1000 का स्क्वायर रूट निकालिए। ओके, तो इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे 1000 का, तो देखिए क्या आता है। 3 से पहले लेना पड़ेगा, तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर प्लस हो जाएगा 3 6 9 1 और 0। 100 है। व्हाट शुड बी एडेड वाले टाइप से चले। यहाँ पे 1 नहीं ले, यहाँ पे 2 ले ले, तो ये हो जाता है 124। सब्ट्रैक्ट करें, आएगा माइनस का 24। तो माइनस का 24 आया है जो, तो हम ये लिखेंगे कि 24 शुड बी एडेड। उसको कितना और ज्यादा चाहिए, 24 रोज चाहिए। उसको चाहिए 24 रोज और 8 है क्वेश्चन नंबर। उसको 24 और ज्यादा चाहिए। तो हम लिखेंगे कि एक्स्ट्रा प्लांट्स नीडेड इक्वल टू 24। क्वेश्चन ये था कि उसको और कितना प्लांट चाहिए। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। तो ये 24 चाहिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि देयर आर 5 चिल्ड्रन इन ए स्कूल, 500 children in a school. For PT drill they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to number of columns. How many children should be left out in the arrangement? तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। ये लेफ्ट आउट लिखा है, तो जो व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड था उसके जैसा क्वेश्चन है। आप उसके जैसा करें, लिखें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 500 अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो देयरफॉर रूट ओवर 500 का स्क्वायर रूट। अब हम लोग ये निकालेंगे, तो 2 से 2 2 जा 4, 2 प्लस हो गया 4 1 डबल 0। अब कितने से जाएगा, तो 2 बार जाएगा, 42 लिया, 2 लिया 84 आया 16। तो ये 60 रिमाइंडर आया। तो हेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 16। देयरफॉर 16 रिमाइंडर है, तो इस रो और कॉलम वाले मैटर में 16 स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट हो जाएंगे। देयरफॉर 16 स्टूडेंट्स
will be left out. Okay, this is all for today. Thank you. Meet you soon in the next video.